Good morning, students. How are you? I hope you all will be very healthy at home and be enjoying your lesson very well. Today, I am going to teach you tense. This video is for standard 6. So, first of all, I will discuss what is a tense. What is a tense? So if we define the tense, the definition will be like this. The tense of the verbs tell us the time of the action. Okay, the tense of the verbs tell us the times of the action. Okay, so it tells us whether the action has taken place in the present, past or future. Okay, the tense of the verbs tell us the time of the action. It tells us whether the action has taken place in the present, past or future. कहने का मतलब कि वर्ब का वह रूप जो हमें बताती है कि कोई काम वर्तमान में होता है या बीते हुए समय में हुआ या आने वाले समय में होगा, क्रिया के इसी संपादन के बारे में जो वर्ड बताता है उसे हम टेंस कहते हैं. टेंस इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम. ओके, verbs are used according to time, like I did my work yesterday. So when I did my work, the time has spent. I do my work this moment. So when I do my work, the work shows present moment and this time is called present time. But after some time, I will finish my work. The coming time will be future time. आने वाले समय में जब मुझसे कोई क्रिया समाप्ति होगी, मैं किसी क्रिया को समाप्त करूँगा, जब कोई काम आने वाले समय में होगा, वह मोमेंट हमारा फ्यूचर टाइम कहलाएगा, जिसे हम फ्यूचर टेंस भी कहते हैं. तो हमने क्या समझा कि टेंस के डिफिनेशन की यदि हम समझें तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि टेंस वर्ब का वह रूप है जो समय के अनुसार यूज किया जाता है सेंटेंस में, उसे हम टेंस कहते हैं. एंड the tense is categorized in three ways. A tense is categorized in three ways. First is present tense, second is past tense, and the third one is future tense. Tense के तीन भेद हुए: present tense, past tense and future tense. So first is present tense. A question rises here. What is a present tense? When an action shows that, when a verb shows that an action takes place in present time, an action takes place in present time, the present time is called present tense. अर्थात जब कोई क्रिया का रूप यह बताता है कि कोई काम वर्तमान समय में होती है किसी के द्वारा, तो वह टाइम प्रेजेंट टाइम कहलाता है. एग्जाम्पल, द टीचर टीचेज अस इंग्लिश ग्रामर इन द क्लास. द टीचर टीचेज अस इंग्लिश ग्रामर इन द क्लास. द वर्ब टीचेज shows the present moment, so this used verb teaches is in present tense. Second example is I am learning you tense. I am learning you tense. This moment, my duty is to make you learn about tense. So this moment is called present tense. कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस उस टेंस को कहते हैं जब वर्ब का रूप उस समय संपादित होती रहती है. अब सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस. हिंदी में इसे कहा जाता है भूतकाल. भूत का हिंदी में अर्थ ही होता है बीता हुआ समय.
जब हमसे कोई क्रिया बीते हुए समय में संपादित होती है वह क्रिया हमारी पास्ट टेंस कहलाती है। When a verb shows that an action took place in past time, it's called past tense. Like, my father went to office yesterday and brought a toy for me. My father went to office yesterday and brought a toy for me. The verb went, the verb brought shows that the action did, but the time was past, and such used form of verb is called past tense. कहने का मतलब कि सेकेंड फॉर्म जो वर्ब का यूज़ किया गया जो बताता है कि कोई क्रिया पास्ट टाइम में संपादित हुई, ऐसे वर्ब यूज्ड हुए सेंटेंस को पास्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस की चर्चा यदि करते हैं तो फ्यूचर टेंस बताती है कि कोई काम आने वाले समय में संपादित होगी। कल मैं पटना जाऊंगा। कल मैं पटना जाऊंगा। पटना जाने की जो मेरी योजना है वह आने वाले कल में है। न मैं गया न मैं अभी जाता हूँ, बल्कि एक योजना है कि आने वाले समय में यह क्रिया संपादित होगी। इस क्रिया की एक अचूक पहचान और है कि क्रिया अपने साथ इसमें गा, गे, गी आदि सफिक्सेस लिए हुए होते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, वह जाएगी। क्रिया जा के साथ गा, गे, गी लगा। ये लगे हुए गा, गे, गी क्रिया के साथ बताते हैं यह प्रेजेंट टाइम नहीं, पास्ट टाइम नहीं, बल्कि फ्यूचर टाइम। इंग्लिश में हम सेंटेंस के साथ इसके लिए शैल या विल का यूज करते हैं। शैल और विल के यूज में हम थोड़ी सी सावधानी बरतें हैं कि शैल एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो सिर्फ दो पर्सन के साथ यूज किया जाता है। एक आई एंड द सेकेंड फॉर्म, द प्लूरल फॉर्म ऑफ आई इज वी। फर्स्ट पर्सन का दो प्रोनाउन हमारा है आई और वी, सिर्फ इनके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जो भी प्रोनाउंस हैं एंड जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं अर्थात नाउन्स हैं, इनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। सो वी कैन से ए फ्यूचर टाइम डिनोट्स फ्यूचर टेंस। सो यू कैन से दैट व्हेन अ वर्ब shows the future time, it is called a future tense। अर्थात जब कोई क्रिया यह बताती है कि कोई काम आने वाले समय में होगा तो इस क्रिया को हम फ्यूचर टाइम अर्थात भविष्यकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, माई क्लास विल स्टार्ट इन नेक्स्ट मंथ। ओके, माई क्लास विल स्टार्ट इन नेक्स्ट मंथ। सो क्लास विल स्टार्ट इन नेक्स्ट मंथ, the verb will start shows future time, so that is called a future tense. In this video I have tried to make you understand in a better moment. If you don't understand my topic, my language, my understood materials, you must consult me on my phone number from 7 to 11 a.m. from Monday to Saturday. I will discuss with you. I will also prescribe you how you can get better knowledge through about tense, and you should also read your book that is given by your school so that you can understand better way. Okay, till then, have a nice day. Goodbye.